Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about a very important mechanism of blood clotting or blood coagulation. Blood clotting के mechanism में हमने बात की थी that whenever we are having an injury of our blood vessels, right, whether it is any external injury or it is an internal injury, in both the cases we start bleeding and therefore there is loss of blood. But this bleeding continues for a very short time, after which the bleeding is going to stop on its own. So there is a mechanism running in our body which is responsible for stopping the leakage of the blood, and that is known as the blood clotting mechanism. We have understood the steps of the blood clotting mechanism, in which there was release of thromboplastin from the disintegrated platelets at the injured sites. The thromboplastin was responsible for activating prothrombinase, which converts prothrombin, a protein, into an activated protein thrombin, which further was responsible for the conversion of fibrinogen to fibrin. So in this way, the fibrin which has formed will be forming a thin network of small fibers around the wound, and it will stop the leakage of the blood cells or any amount of plasma. Some amount of serum, which is droplet like, will be appearing at the injured site, and this concludes that there has been a formation of the clot and now no more blood loss is going to occur. We also discussed about the 13 factors which played a role in the blood clotting mechanism. Now we are heading towards the next topic in this chapter, and that is the lymph. जैसे ब्लड जो है वो एक सर्कुलेटिंग एजेंट है, एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है हमारी बॉडी में, सिमिलरली हमारी बॉडी में दूसरा भी सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उसे कहा जाता है lymph. So actually we have two major body fluids. About one which we have already discussed, that is the blood, and the second one which we are discussing is the lymph. So when is lymph form, मतलब lymph कहाँ पे होता है, कहाँ फॉर्म होता है, उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले lymph समझने से पहले we need to understand what is interstitial fluid or tissue fluid. Now as the blood passes through the capillaries, some amount of water and water soluble substances moves out into the spaces between the cells of tissue. हमें पता है कि हमारा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो होता है. तो आर्टरीज और वेन्स की वॉल्स तो थिक होती है, पर जब वो ब्लड कैपिलरी में एंटर होता है तो कैपिलरीज हैव अ वेरी थिन लेयर सराउंडिंग देम. कैपिलरीज के सराउंडिंग जो लेयर होता है, जो कैपिलरी की वॉल है, वो एक सिंगल लेयर्ड सेल से बनी हुई होती है. इसीलिए कैपिलरीज काफी परमिएबल होती है, राइट? क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी आर्टरी कोई ऑर्गन में एंटर होती है तो वो डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, और ये कैपिलरी की जो वॉल है वो बहुत ही थिन है. इसीलिए क्या होता है कि कई बार ब्लड प्लाज्मा जो है या ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है या वाटर है, दे एग्जिट आउट ऑफ द कैपिलरी. कैपिलरी से बाहर जहां पे सेल्स हैं और सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस में ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है. एंड दिस फ्लूइड which is present between the spaces between the cells of the tissues will be known as the tissue fluid, or we can say it as the interstitial fluid, right? तो इसमें क्या पास ऑन नहीं हो सकता, मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या पास होगा, वाटर, और जो
वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं ये बाहर निकल जाएंगे कैपिलरी के बाहर, सारे नहीं ऑब्वियसली, some of the water and water soluble substances will exit, right? What will be left behind? So leaving the large sized proteins and corpuscles in the vessel, right? तो वाटर और वाटर soluble substances कैपिलरी के बाहर आ सकते हैं, ठीक है, पर जो प्रोटीन्स हैं या तो ब्लड सेल्स हैं वो कैपिलरीज को लूज नहीं करेंगे, वो कैपिलरी में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके साइज बड़े होते हैं, इसीलिए वो इजीली कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके टिश्यू सेल्स के बीच में नहीं जा सकते, राइट? सो दिस इज इंडिकेटिंग दैट दिस फ्लूइड बिटवीन द cells of tissue is known as interstitial fluid or tissue fluid। इस फ्लूइड को क्या कहा जाएगा? इंटरस्टिशियल, क्योंकि वो सेल्स के बीच में है इसीलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स भी कह सकते हैं और टिश्यू फ्लूइड्स भी इस फ्लूइड्स को कह सकते हैं कि टिश्यू फ्लूइड्स होंगे, ठीक है। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं उनका कंपोजिशन नियरली किसके कंपोजिशन जैसा हुआ? ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन जैसा ही हुआ, राइट? सिर्फ क्या नहीं होता? प्रोटीन्स और कॉर्पसल्स नहीं होते। सो टिश्यू फ्लूइड्स हैव सेम मिनरल composition as ब्लड प्लाज्मा। मैंने यहाँ पे मिनरल कंपोजिशन लिखा है, ठीक है। मिनरल कंपोजिशन मतलब जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, इन मिनरल्स की बात करें तो मिनरल कंपोजिशन जो है वो ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है। पर अब हर बार अगर ऐसा फ्लूइड बाहर निकल जाए कैपिलरी के तो क्या हो जाएगा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज एवरी टाइम अ कैपिलरी एंटर्स इनटू एन ऑर्गन सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव आउट। इफ दिस कंटिन्यूज हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो इसीलिए एक दूसरी नेटवर्क होती है कैपिलरीज की जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में से एक्सेस फ्लूइड्स को लेके वापस ड्रेन करता है इनटू द वेनस सिस्टम, राइट? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अनदर नेटवर्क ऑफ capillaries take this tissue fluid and pour it in the venous system, right? इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स या टिश्यू फ्लूइड्स का लेवल अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा होगा कि ब्लड वॉल्यूम कम होता जाएगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स बढ़ते जाएंगे। ऐसा ना हो इसीलिए हमारे पास एक दूसरी नेटवर्क है कैपिलरीज की, और ये कैपिलरीज क्या करती है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स जो हैं उन्हें कलेक्ट करके वापस उन्हें ड्रेन कर देती है, उन्हें पोर कर देती है इनटू द वेनस सिस्टम, मतलब वेन्स ऑफ आवर बॉडी। एंड दिस सिस्टम, दिस नेटवर्क of capillaries is the lymphatic capillaries. These are known as the lymphatic capillaries, right? Or lymphatic capillaries, they consist of the fluid called as लिम्फ। लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो फ्लूइड है उसे क्या कहा जाएगा? लिम्फ कहा जाएगा, राइट? तो लिम्फ जो है इट इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ब्लड एंड द नियर बाय सेल्स। ब्लड को, जैसे कि ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स लेके सेल्स को देने हैं तो इंटरमीडिएट क्या है? लिम्फ है, राइट?
जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स। तो बीच में मिडल मैन का काम कौन करता है? लिम्फ करता है। इवन ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने का काम भी किसका होता है? लिम्फ का होता है। अगर लिम्फ के कंपोजिशन की बात करें तो लिम्फ का कंपोजिशन जैसे हमने कहा नियरली सेम एज ब्लड प्लाज्मा, राइट, बट सेम एज ब्लड प्लाज्मा except it has high glucose होता है, लो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ही कम होता है और ग्लूकोज का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है एंड वेरी फ्यू प्रोटीन्स, राइट, प्रोटीन्स बहुत ही कम होते हैं और ब्लड सेल्स नहीं होते। यहाँ पे एक ही तरह के ब्लड सेल्स होते हैं और उन्हें भी कहा जाता है लिम्फोसाइट्स, जो व्हाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है। ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो मेनली लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, राइट, एंड वेरी फ्यू प्रोटीन्स, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं उनको इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहा जाता है। इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहा जाता है और दूसरा वर्ड है एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स और एंटीबॉडीज जो है वही एक प्रोटीन होते हैं जो लिम्फ में प्रेजेंट है, अदरवाइज लिम्फ में कोई प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है। क्या होगा? ग्लूकोज का अमाउंट लिम्फ में ज्यादा होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल बहुत ही कम होता है और प्रोटीन्स तो नहीं होते पर जो होते हैं वो भी इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं जो एंटीबॉडी होते हैं। मोर ओवर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, पर्टिकुलरली लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करते हैं वो लिम्फोसाइट्स भी लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ जो है उसका फॉर्मेशन लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है। हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जैसे कि आपने शायद नाम सुना होगा, लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, पियर पैचेस है, राइट, ये सारे, बोन मैरो है, थाइमस है, ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स है और लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फ। लेट अस हैव अ लुक अपॉन फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ के काम क्या रहते हैं हमारी बॉडी में? So we will mention the functions. तो पहला ही फंक्शन मैं लिख देती हूँ, it is the middleman between blood and the cells of tissues for transport of nutrients and gases, right? ब्लड में से जैसे कि ग्लूकोज है सेल तक पहुंचाना है, ठीक है, तो ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कौन करेगा? लिम्फ, और फिर उसे सबमिट कहाँ पे कर देगा? टू द सेल्स। सेम वे सेल्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उस वेस्ट को भी कलेक्ट लिम्फ करता है और फिर उसे ड्रेन कर देता है इनटू द वेनस सिस्टम। मतलब हमारे ब्लड और हमारे सेल्स के बीच में जो काम करेगा, दोनों को एक्सचेंज करवाने का जो काम करेगा वो काम होता है लिम्फ का, इसीलिए उसे कहा जाता है मिडल मैन ऑफ अवर बॉडी, राइट। दूसरी चीज ये है कि लिम्फ जो है वो जब भी हमारा ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है तो उसे वापस मेंटेन करने का काम भी लिम्फ का होता है। मतलब अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में से लिम्फ जो है वो ब्लड में एंटर हो जाएगा और देयर बाय ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। सो इट इज मेंटेन्स द ब्लड वॉल्यूम, राइट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, राइट, या ड्यू टू एनी अदर कंडीशन हमारा ब्लड का अमाउंट, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो ऐसा ना हो इसीलिए लिम्फ जो है, जो लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो हो रहा है, वहां से some amount of lymph enters into your blood and thereby increases the volume of the blood and maintains it so that your all other functioning which is associated with the blood can go out normally, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा,
लिम्फ जो इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है लैक्टियल्स, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, राइट. सो लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइन present in the villi are known as lacteals, and lacteals are for absorption of fat and fat soluble vitamin. फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फैट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन का अब्जॉर्प्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लिम्फ का. ठीक है. दूसरा, लिम्फ जो है उसमें लिम्फोसाइट्स हैं और ये क्या करेंगे, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग एनी बैक्टीरिया, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैज एंटर्ड इनटू योर बॉडी. सो इट डिस्ट्रॉयज, लिम्फ आल्सो डिस्ट्रॉयज फॉरेन organisms and kills them, राइट. हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में जो भी पैथोजन एंटर हो गया है, कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया है, तो उसे ट्रैप करना, उसे किल करना, उसे रिमूव करना, ये फंक्शन भी लिम्फ का है. तो लिम्फ के बहुत से फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मिडलमैन का काम करता है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है. लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो फैट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और कोई भी फॉरेन पैथोजन, फॉरेन बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं. ये भी फंक्शन है लिम्फ का, राइट. तो यहाँ पे हमने लिम्फ के बारे में डिटेल में बात कर ली है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवेज.